رب، رب کے معنی کیا ہے اور جمع کیا آتی ہے؟ رب کے معنی ہے پالنے والا. جمع جمع رب کا کسر آتی ہے جمع یا سالم. جو بھی آتی ہے لکھائی تھی نا، ارباب کیا آتی ہے؟ ارباب ارباب. اس کو رٹا لگاؤ نا، یہ جمع، یہ واحد، یہ یاد کرو. یہ تو تھوڑے تھوڑے آپ کو میں میننگ دے رہا ہوں. ہم میننگ جب یاد کرتے تھے ایک ایک دن میں 100 200 میننگ یاد کرتے تھے، تب جا کے کچھ عربی کی ہوا لگے گی. تو یہ تو دو تین تین الفاظ ہوتے ہیں، آپ کو کم سے کم ان کو تو پکا یاد کرو. اور یہ چونکہ قرآن کے الفاظ ہیں، بار بار آئیں گے، تو اس لیے ان کو اچھے سے یاد کرو. آگے میننگ لکھانی تھی، وہ میں نے لکھی نہیں بورڈ پہ، یا ایسے ہی لکھا دوں. کاپی کھولو. جو ایسے آپ میں تو سے جو جو آپ میں سے تیز لکھنا جانتا ہو وہ لکھو، میں لکھاتا ہوں. 2 منٹ 2 منٹ. آگے کی میننگ لکھ لو، تب تک پچھلی سناؤ. رب العالمین. ردا، آپ ترجمہ سناؤ قرآن کا، جتنی آیت پڑھیں سب آیتوں کا سناؤ ترجمہ. آپ مؤنث ہیں، آپ مانگتی ہوں بولیں، کیونکہ اعوذو واحد متکلم کا صیغہ ہے. مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب مؤنث بول رہا ہے تو وہ اپنے لیے اسی اعتبار سے استعمال کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ پوری آیت پڑھ کے ترجمہ مت سناؤ. میں نے آپ کو کیا کہا تھا، ایک ایک ٹکڑے کا ترجمہ سنانا ہے. تو جتنا ٹکڑا پڑھو گے اتنے کا ترجمہ کرو. اعوذ اتنا پڑھو اور اس کا ترجمہ کرو. میں پناہ مانگتی ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. جتنا پڑھو اتنا ہی ترجمہ کرو. چلو. بسم اللہ ہی، بسم اللہ ہی، بس اتنا ہی کرو پہلے. اللہ کے نام کے ساتھ لفظی ترجمہ کرو پہلے. جو جو نہایت رحم ہے. ہوں، ٹھیک. آگے آگے آپ سناؤ. ہوئے پہ آپ سناؤ آگے. تو رول نمبر 1 آپ سناؤ آگے. ریاض بھی کافی کھولی آپ نے الفاظ میں نے لکھنے کے لیے. جی 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 جی. چلو ہوئے پہ آپ ترجمہ سناؤ، میں آپ کو میننگ لکھاتا ہوں. کہاں تک ہو گیا تھا؟ الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، اس کا نہیں ہوا تھا ابھی نا؟ نہیں نہیں، اس کا نہیں ہوا تھا. ٹھیک. لکھو مالکن. ہاں، اس کی میننگ لکھوائی تھی ہے نا؟ ٹھیک. چلو. صحیح ہے. یا کا نہیں، یا کا آگے ہے نا، وہ لکھو. یا کا لکھو. یا کا حمزہ یا زیر، یا الف زبر یا کا صبر کا، یا کا تجھ ہی سے، تو ہی، تجھ ہی سے اور تو ہی. یہ ضمیر ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل. تو یہ الگ سے آتی ہے. تو یہاں پر یا کا، تجھ ہی سے، تجھی کو، اس جیسے جملے جب بولنے ہو وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا معنی لکھو، تجھ ہی سے. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. عبادہ یا عبودو، عبادہ ماضی آتا ہے، یا عبودو مضارع آتا ہے. ٹھیک. یا عبودو سے گردان بنتی ہے جمع متکلم کی. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا معنی ہم عبادت کرتے ہیں. اور دوسرے پہلے نمبر پہ کیا لکھو گے؟ نعبدو. اور بیچ میں چھوڑ کے آگے معنی میں لکھو گے ہم عبادت کرتے ہیں. پھر اس کے سیغے الگ سے لکھو گے. نعبدو کے بعد نیچے لکھو عبادہ یا عبودو، پھر آگے لکھو عبادت کرنا. ٹھیک. یعنی معنی اصل عبادت کرنا ہے. اگر ماضی کے لینے ہیں تو بولیں گے عبادت کی، مضارع کے لینا ہے تو بولیں گے عبادت
करता है या करेगा, ठीक। नाबुदु। नस्तईन, नस्तईन का माना है हम मदद चाहते हैं। ये भी जमा मुतकल्लिम का सीगा है, लेकिन ये इतना बड़ा क्यों है नस्तईन? क्योंकि इसका फेल 3 हरफों वाला नहीं है। इसका माज़ी जो आता है वो माज़ी बहुत लंबा। इसका माज़ी आता है इस्ताआना। पहले लिखो नस्तईन, इसका माना लिखो आगे। नस्तईन हम मदद चाहते हैं। फिर उसके नीचे लिखो माज़ी इस्ताआना, और मुज़ारे लिखो यस्तईनु। इस्ताआना यस्तईनु। ये गर्दान अभी आपने नहीं पढ़ी, ये बहुत आगे जाके आप पढ़ोगे। अभी आपने सिर्फ 3 हर्फ जिनका माज़ी का 3 हरफ़ी वाला माज़ी होता है, उनकी गर्दान पड़ी है। और इस्ताआना, इसके तो कितने हरूफ हैं देखो, इस 2, ता 3, आ 5, ना 6, तो 6 हर्फ हैं। ये गर्दान बाद में पढ़ोगे। फिलहाल लिख लो इस्ताआना माज़ी, यस्ताइनु मुज़ारे, और माना क्या लिखोगे? मदद चाहना। ऊपर लिख लिया ना हम मदद चाहते हैं, नीचे लिखो मदद चाहना, बस। चलो पढ़ो आप अगली आयत का तर्जुमा। रहमान रहीम, मालिकी यौमिद्दीन है। मालिक, मालिक माना मालिक, ठीक, बादशाह। तो मालिकी, मालिक है। अल्लाह की बात चल रही है ना, अल्लाह की सिफात बयान की जा रही है। और रहमान बड़ा मेहरबान है, और रहीम निहायत रहम करने वाला है। मालिकी, मालिक है यौमिद्दीनी, बदले के दिन का। यौम माना दिन, ठीक। अदीनी, बदला, बदले का दिन। बदला। तो यौमिद्दीन बदले का दिन। कौन सा जुमला है? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का। यौमिद्दीनी, बदले का दिन। यौम पे जो ज़ेर आ रही है वो पीछे से जो कायदा चला आ रहा है वही यहाँ पे भी फिट हो रहा है, इस वजह से ज़ेर आई है। और दीनी पे मुज़ाफ इलैहि होने की वजह से यौमिद्दीनी, बदले का दिन। मालिकी, मालिक है यौमिद्दीनी, बदले के दिन का, ठीक। अल्लाह की बात चल रही है, यानी वो अल्लाह ताला जो रहमान भी है, रहीम भी है। और उसके बाद और क्या है? मालिकी, मालिक है यौमिद्दीनी, बदले के दिन का, बस। चलो आ जाओ नहू कासमी की तरफ। बोला था आप नहू कासमी किताब से पढ़ेंगे, तो किताब सारे हजरात खोल लो। गाइब कौन है? मन मिनल गाइबीना, कौन है गायब? वो है, क्या नाम है इसका? सकी भाई, वो गायब नहीं थे। चलो नहू कासमी जल्दी से खोल लो, शुरू से खोलो, क्योंकि अब हम किताब से पढ़ेंगे। तो जब किताब से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से देख लो, नजर मारते जाओ किताब की तरफ, धड़ाधड़ सरसरी नजर, ताकि जहां से हम शुरू करें तो पता चले पीछे क्या था। ठीक, सारे हाजिर हैं? नजरें सबकी किताब की तरफ हैं, सफा नंबर 10, जहां पर लफ्ज मोहम्मल और मौजू है, जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो जो भी बात हम जुबान से बोलेंगे, अगर गैर मानादार है तो मोहम्मल, कोई माना नहीं निकलता मोहम्मल, माना निकलता है तो मौजू। ठीक, समझ गए? मौजू की 2 किस्में हैं। मौजू कहते किसको हैं? मानादार लफ्ज को। फिर इसकी 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद कहते हैं अकेले को, मुरक्कब कहते हैं मिले हुए को, ठीक। फिर मुफरद की और किस्में आगे निकलती हैं। मुफरद का दूसरा नाम कलीमा भी है, मुफरद को कलीमा भी कहते हैं। फिर हम मुफरद का दूसरा नाम कलीमा रख के कलीमे की आगे किस्में निकालते हैं। और कितनी किस्में कलीमे की? 3। इसम, फेल, हर्फ। इसम उसको कहते हैं जो अपना माना खुद बताए, जिसके माना उसके बोलने से समझ में आ जाए मगर उसमें कोई जमाना ना पाया जाता हो। फेल उसको कहते हैं जिसका माना उसके बोलने से समझ में आ जाए मगर उसमें कोई जमाना भी हो, माजी, हाल, मुस्तकबिल में से। हर्फ उसको कहते हैं कि जिसके अंदर कोई ज़माना ना पाया जाता हो और ना ही वो किसी दूसरे के साथ मिलाए बगैर समझ में आता हो। ठीक हो गया? रुको मैं ज़रा माइक लगा लेता हूँ, आपको आवाज़ क्लियर आए ताकि। बस। चलो, आवाज़ आ रही है?
तो मुफरद का दूसरा नाम था कलीमा। कलीमे की 3 किस्में निकली, इस्म, फेल, हर्फ। हो गया? समझा दिए इस्म फेल होता क्या है, समझ गए। अब आ जाओ सीधे मुरक्कब की तरफ। मुरक्कब उसको कहते हैं कि जो 2 या 2 से ज्यादा कलीमों से मिलकर बना हो, ठीक? फिर मुरक्कब की 2 किस्में निकलती हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम उसको कहते हैं कि जिसमें बात पूरी मुकम्मल हो जाए, ऐसे 2 कलीमे जो आपस में मिले हों और बात कंप्लीट हो जाए। मुरक्कब नाकिस उसको कहते हैं कि जहाँ पर कलीमे आपस में मिले लेकिन उसके बावजूद पूरी बात समझ में नहीं आती, ठीक? फिर मुरक्कब नाकिस का एक नाम मुरक्कब गैर मुफीद भी था। फिर इसका दूसरा नाम मुरक्कब गैर मुफीद रख के फिर इसकी आगे किस्में निकाल दी। वो कौन-सी थी? मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक? मौसूफ़ सिफ़त का जुमला, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का जुमला, ये किसकी किस्म है? मुरक्कब नाक़िस की, ठीक? मौसूफ़ सिफ़त का जैसे अल मस्जिदुल जमीलु, खूबसूरत मस्जिद, वलदुन सालिहुन, नेक लड़का, तो ये क्या है? मौसूफ़ सिफ़त। और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि जैसे क़लमु हामिदिन, बैतु राशिदिन, राशिद का घर, ठीक? मस्जिदुल्लाहि, अल्लाह की मस्जिद, ठीक? ये क्या है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि के जुमले। फिर आ गया मुरक्कब मुफीद, यानी मुरक्कब ताम, ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल समझ में आ जाए। उसकी 2 किस्में थी। क्या-क्या? मुरक्कब मुफीद की 2 किस्में हैं। कौन-कौन सी? जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया उसको कहते हैं कि जिसमें किसी बात की खबर मिल रही है। सुनने वाले को मज़ीद कोई इंतज़ार ना रहे, बात पूरी समझ में आ जाए। जुमला इंशाइया उसको कहते हैं जिसमें किसी चीज़ की खबर ना दी जा रही, बल्कि उसमें हुक्म दिया जा रहा, या कुछ और भी हो सकता है। बहरहाल ये है कि जुमला इंशाइया जिसमें खबर नहीं, और जुमला खबरिया जिसमें खबर मिल रही है। फिर जुमला खबरिया की आगे 2 किस्में निकालें। क्या-क्या? जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया उसको कहते हैं जो इसम से शुरू हो, और फ़ेलिया उसको कहते हैं जो फ़ेल से शुरू हो। यानी ये जुमले मुकम्मल होंगे, कंप्लीट बात इनमें पूरी समझ में आ रही होगी, चूँकि ये हैं ही मुरक्कब ताम की किस्में। जुमला खबरिया किसकी किस्म है? मुरक्कब ताम की। और फिर जुमला खबरिया के आगे और 2 किस्में निकलती हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया के अंदर एक मुब्तदा होगा, एक खबर होगा, ठीक? और जुमला फ़ेलिया के अंदर एक फ़ेल होगा, दूसरा फ़ाइल होगा। हो गया समझ में? इतना ही आपने पढ़ा है। अब आ जाओ सीधे सफ़ा नंबर किसकी तरफ हो? 15, सफ़ा नंबर 15, यहाँ तक आपको समझाया, ठीक? सफ़ा नंबर 15 पे जहाँ इन्होंने लिखा है, अब तारीफ़ात सुनिए। ये दरअसल किसकी तारीफ़ात कर रहे हैं? जो सफ़ा नंबर 14 में देखो जुमले की तक़सीम, जो मैंने आपको समझा दिया कि जुमले की 2 किस्में, यानी मुरक्कब मुफ़ीद का नाम जुमला भी है, तो उसकी 2 किस्में ख़बरिया, इंशाइया, दोनों की तारीफ़ें नीचे दी, मैंने समझा दी। फिर जुमला ख़बरिया की 2 किस्में नीचे लिखी हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, वो भी मैंने आपको समझा दी। अब सफ़ा नंबर 15 पे अब तारीफ़ात सुनिए, तो सुनो तारीफ़, किसकी तारीफ़ात सुना रहे हैं? ये मुब्तदा और खबर की, यानी जुमला-ए इस्मिया की। तो हमें थोड़ा-सा और डिटेल में समझना पड़ेगा जुमला-ए इस्मिया को, इसको छोड़कर हम आगे नहीं जा सकते। अभी तक तो हमने समझा कि जुमला-ए इस्मिया उसको कहते हैं जो इस्म से शुरू होता है और उसमें बात कंप्लीट होती है, और पहले वाले को जिससे जुमले की इब्तिदा हो रही है उसको मुब्तदा कहते हैं, और जिस पर बात खत्म हो रही है उसको खबर कहते हैं। तो जुमला-ए इस्मिया मुब्तदा और खबर से मिलकर बनता है। अब जुमला-ए इस्मिया के अंदर क्या-क्या शराइत हैं, कैसा-कैसा होता है, कितनी तरह का होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बयान कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक? आ जाओ सफ़ा नंबर 15, तारीफ़ात सुनिए। देखो, मुब्तदा किसको कहते हैं? ऐसा इसमें मुस्नद इलैहि जो मुस्नद से पहले हो। चूँकि मुब्तदा खबर में एक मुस्नद इलैहि होता है, एक मुस्नद होता है। यानी जिसकी तरफ वो खबर इस्नाद की जा रही हो, खबर को जिसके लिए जोड़ा जा रहा हो, उसको मुस्नद इलैहि कहते हैं, और जिस चीज़ की खबर दी जा रही हो, उसको मुस्नद कहते हैं। जैसे अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। यहाँ पर नेक होने की खबर
लड़के के साथ जोड़ी जा रही है, तो लड़का बन गया मुस्नद इलैहि, तो मुस्नद इलैहि पहले आता है, अल वलदु पहले आ गया। फिर सालिहुन, साले होने की खबर दी जा रही है, तो मुस्नद बाद में आता है, तो सालिहुन क्या है, मुस्नद है, ठीक। यानी एक मुस्नद इलैहि और दूसरा मुस्नद, ठीक। खबर ऐसा मुस्नद या फेल मुस्नद जो मुस्नद इलैहि के बाद हो, तो खबर उसको कहते हैं कि एक तो वह मुस्नद हो, अब वो इसम भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, चूंकि आपने पढ़ा है कि मुब्तदा खबर में मुब्तदा हमेशा इसम होता है, खबर इसम भी हो सकती है, फेल भी। तभी इन्होंने कहा कि ऐसा मुस्नद या फेल मुस्नद जो मुस्नद इलैहि के बाद हो, यानी पहले उससे मुस्नद इलैहि आ चुका हो, अब वो बाद में आ रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, खबर। नीचे जुमला इस्मिया, ऐसा जुमला जो मुब्तदा और खबर से मिलकर बने, बता चुका हूँ। जुमला फेलिया, ऐसा जुमला जो फेल और फाइल से मिलकर बने। जुमला फेलिया किसको कहते हैं, जो फेल और फाइल से मिलकर बने, उसमें भी बात कंप्लीट हो, मगर उसमें पहला वाला फेल हो, दूसरा वाला फाइल। अब नीचे इन्होंने अमसिला, मिसालें लिखी हैं जुमला इस्मिया की। क्या मिसाल है, देखो, अशायु हाजिर, चाय हाजिर है, चाय इसम है, ठीक। हाजिरुन ये भी इसम है, तो मुब्तदा भी इसम, खबर भी इसम, ठीक। और मुब्तदा मारिफा है, खबर नकिरा है, ये आगे आप पढ़ोगे, फिलहाल मिसाल को समझ लो। शायु मुब्तदा, हाजिरुन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला है खबरिया। अन्नाजिहु साजिदुन, कामयाब होने वाला साजिद है, ठीक, मुब्तदा खबर का जुमला। राशिदुन यक्तुबु, राशिद लिखता है, ये भी मुब्तदा खबर का जुमला। अब देखो मुब्तदा इसम है, खबर फेल है, पढ़ा था ना, खबर फेल भी हो सकता है, तो देखो खबर फेल आ गई, राशिदुन यक्तुबु, यक्तुबु कौन सा सीगा है, मुजारे का, और फेल है, तो खबर यहाँ पर जो है कि फेल भी आ गई, ठीक। नीचे आ जाओ आप। अमसिला बाला के पेश नजर जुमला इस्मिया के कवायद सुनिए। यहाँ से हम पढ़ना किताब से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको बारहा समझाई जा चुकी हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बीच में से छूट रही थी, तो वो छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको बिल इस्तेआब पढ़ रहे हैं, यानी कंप्लीट मुकम्मल तौर पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाओ नीचे, मिसाल अमसिला बाला के पेश नजर जुमला इस्मिया के कवायद सुनिए, यानी जो मिसालें दे दी हैं इसके हिसाब से कुछ कायदे। नंबर एक, मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होती हैं। अब ये याद रखना, पहले भी कल भी पढ़ाया गया था कि मरफूआत में आपको बताया था कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से किसी कलमे के अखीर में रफा आता है। एक फाइल बताया था, एक नाइब फाइल बताया था, तीसरी चीज बताई थी मुब्तदा खबर। तो देखो मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, तो हमें मुब्तदा और खबर का इराब समझ में आ गया, इन पर रफा हमेशा होता है, मुब्तदा पर भी रफा लगाएंगे, खबर पर भी रफा लगाएंगे, एक शर्त मुब्तदा और खबर की, यानी जुमला इस्मिया की। नंबर दो, इसमें नकिरा पर अलिफ लाम दाखिल करने से मारिफा बन जाता है, फिर उस पर तनवीन नहीं आती। आगे आएगा कि मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, तो उससे पहले ही इन्होंने बता दिया कि अगर हमने किसी चीज को मारिफा लाना है, लेकिन हमें तरीका नहीं आ रहा मारिफा कैसे लाएं, वो तो नकिरा है, किताबुन है, अब उसको हम मुब्तदा बना रहे हैं, लेकिन हमें साथ में वो शर्त याद है कि मुब्तदा में मारिफा होता है। तो अब आप सोच रहे हैं किताबुन को मारिफा कैसे बनाएं, तो इन्होंने कहा बहुत आसान है, इसमें नकिरा पर अलिफ्लाम दाखिल करने से मारिफा बन जाता है, अलिफ्लाम लगाओ वो मारिफा बन जाएगा। आगे समझ, फिर उस पर तनवीन नहीं आती, ये भी पढ़ चुके हैं कि अलिफ्लाम आ जाए तो फिर तनवीन नहीं आती। दो शर्तें समझ में आ गई मुब्तदा और खबर की। तीसरी शर्त, मुब्तदा मारिफा होता है, खबर मारिफा भी होती है, नकिरा भी। किताब की तरफ देख रहे हो ना, किताब की तरफ देखते रहना। नंबर तीन, सफा नंबर 16 की पहली लाइन। नंबर तीन, मुब्तदा मारिफा होता है, खबर मारिफा भी होती है, नकिरा भी। मुब्तदा क्या हमेशा मारिफा होता है, उस पर हमेशा अलिफ लाम होगा। अगर अलिफ लाम नहीं आ रहा है मुब्तदा पे, तो समझ जाओ कि वो फिर भी मारिफा है। वो क्या हो सकता है, वो नाम हो सकता है, जैसे हामिदुन, खालिदुन, हैं, ये नाम आ गए, तो इन नामों पर अलिफ लाम नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मारिफा होते हैं। तो मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, खबर मारिफा भी होती है, नकिरा भी। तो खबर कभी मारिफा बनेगी, कभी नकिरा बनेगी, जरूरत के एतबार से हम खबर को ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर चार, मुब्तदा हमेशा इसम होता है, खबर इसम भी होती है, फेल भी। हमेशा मुब्तदा इसम ही होगा, मुब्तदा को हम फेल नहीं बना सकते, फेल को मुब्तदा नहीं बना सकते। अगर फेल पहले आ रहा है और हमें लगता है कि ये तो जुमला खबरिया है, क्योंकि जुमला खबरिया में फेल पहले भी आता है और वहां पर बाद में फाइल लाया, बात कंप्लीट हो गई। जैसे ज़राबा खालिदुन, खालिद ने मारा। अब हमें लग रहा है ये तो जुमला खबरिया जैसा जुमला है, अच्छा इसमें पहला मुब्तदा होगा दूसरी खबर,
تو आप ज़राबा को मुब्तदा बना दें, नहीं बना सकते। याद रखें मुब्तदा हमेशा इसम होता है। अगर फेल है तो इसका मतलब वो मुब्तदा नहीं है, वो कुछ और है। वो क्या है? फेल फेल है, आगे वाला फाइल है और फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बन गया, वो जुमला फेलिया है, वो अलग है। और अगर शुरू में इसम है तो समझ जाओ कि ये मुब्तदा है, मुब्तदा खबर वाला जुमला है। तो नंबर 4, मुब्तदा हमेशा इसम होता है, खबर इसम भी हो सकती है और फेल भी हो सकती है। वो कैसे? खबर को कभी हम इसम लाएंगे, कभी फेल लाएंगे। इसम लाने के कायदे आप बार बार पढ़ चुके हैं। अलवलदु सालिहुन, लड़का नेक है। हाँ, खबर क्या है? इसम। अलवलदु यज़हबु, लड़का जा रहा है। आ गई खबर यहाँ पर फेल। तो खबर इसम भी हो सकती है, फेल भी, लेकिन मुब्तदा हमेशा इसम होगा। नंबर 5, मुब्तदा अगर वाहिद मुज़क्कर हो तो खबर को भी वाहिद मुज़क्कर लाना ज़रूरी है। ये भी बता चुका हूँ। मुब्तदा वाहिद मुज़क्कर है, खबर भी वाहिद मुज़क्कर आएगी। अर्रजुलु तवीलुन, आदमी लंबा है। अर्रजुलु वाहिद है, तवीलुन ये भी हम वाहिद ही लाएंगे, लंबा है। ठीक। अलवलदु वाहिद है, सालिहुन ये भी वाहिद है। तो मुब्तदा वाहिद आया था, सालिहुन वाहिद ही लाया। यानी मुब्तदा अगर वाहिद है तो खबर भी वाहिद ही होगी, और अगर मुब्तदा कुछ और है तो खबर भी कुछ और होगी। फिलहाल इतना। अब देखो नीचे इन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं, उनको छोड़ो, सीधे नीचे आ जाओ। मजीद अमसिला देखिए और कवायद सुनिए। अब यहाँ पर कुछ और कायदे हैं। मुब्तदा खबर के कितने कायदे पढ़ लिए? 5। 5 कायदे आ गए, 5 शर्तें आ गई, इनको आपने याद रखना है। अब नीचे कुछ और कायदे लिखे हैं, सीधे आ जाओ कायदा नंबर 6 की तरफ। 5 कायदे पढ़ लिए ना? क्या थे 5 कायदे? नंबर 1, मुब्तदा और खबर हमेशा मरफू होते हैं। नंबर 2, इसम पर अलिफ लाम दाखिल करने से वो मारिफा बन जाता है, इसमें नकीरा पर अलिफ लाम दाखिल करने से मारिफा बन जाता है। नंबर 3, मुब्तदा मारिफा भी होता है, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, खबर मारिफा भी होती है, नकीरा भी। नंबर 4, मुब्तदा हमेशा इसम होता है, खबर इसम भी होती है, फेल भी। नंबर 5, मुब्तदा अगर वाहिद मुज़क्कर हो तो खबर को भी वाहिद मुज़क्कर लाना ज़रूरी है। ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद होने चाहिए, इनको याद कर लेना। अब आ जाओ कायदा नंबर 6 की तरफ। कहाँ है कायदा नंबर 6? नीचे देखो। कायदा नंबर 6, मुब्तदा अगर तस्निया मुज़क्कर हो तो खबर को भी तस्निया मुज़क्कर लाना ज़रूरी है। ऊपर वाला कायदा क्या था? मुब्तदा अगर वाहिद मुज़क्कर हो तो खबर को भी वाहिद मुज़क्कर लाना है। और कायदा नंबर 6 में क्या है? मुब्तदा अगर तस्निया हो तो खबर को भी तस्निया लाना ज़रूरी है, तस्निया मुज़क्कर लाना ज़रूरी है। मुब्तदा अगर तस्निया मुज़क्कर है, खबर भी तस्निया मुज़क्कर होगी। ठीक, समझ गए? अब इसके ऊपर देखो मिसाल। कायदा नीचे लिखा है, मिसाल ऊपर लिखी है। कायदा नंबर 6 के ऊपर जो मिसाल है, देखो। अल किताबानी मफ्तूहानी, किताबुन वाहिद है, किताबानी तस्निया है। आ गई अल किताबानी तस्निया। तो अब इसकी खबर मफ्तूहन नहीं बल्कि मफ्तूहानी, उसको भी तस्निया लाएंगे। क्यों? अगर मुब्तदा तस्निया मुज़क्कर होगा तो खबर को भी तस्निया मुज़क्कर लाना ज़रूरी है। लिहाजा वाहिद यहाँ पर मुब्तदा जो है कि वो तस्निया मुज़क्कर था, इसलिए हमने खबर भी तस्निया मुज़क्कर लाई है। ठीक? 2 किताबें खुली हुई हैं, अल किताबानी, अल किताबु मफ्तूहुन, ये है वाहिद का जुमला। किताब खुली है, अल किताबु मफ्तूहुन, किताब खुली है। लेकिन अब हमने बोलना है कि 2 किताबें खुली हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? किताब को भी तस्निया बना दो, मफ्तूहुन को भी तस्निया बना दो। अल किताबानी मफ्तूहानी, किताबें खुली हुई हैं, दोनों किताबें खुली हैं। ठीक? आगे मिसाल, तिलमीज़ानी नजहा, तिलमीज़ुन माना होता है तालिबे इल्म, तिलमीज़ानी 2 तालिबे इल्म, नजहा फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। लेकिन चूँकि मुब्तदा यहाँ पर तस्निया है, तो अब जो हम खबर ला रहे हैं, वो भी तस्निया होगी। तो नजहा वाहिद है, नजहा तस्निया है, तो तस्निया का सीगा लाओ। क्योंकि खबर फ़ेल भी होती है, तो यहाँ पर खबर फ़ेल आ रहा है, तो चूँकि वाहिद मुब्तदा जो है वो तस्निया है, इसलिए खबर को भी हम तस्निया ही लाएँगे, उसको वाहिद नहीं लाएँगे। तिलमीज़ानी नजहा, 2 तालिबे इल्म कामयाब हो गए, 2 तालिबे इल्म कामयाब हो गए। ठीक? हो गया, कायदा नंबर 6 भी समझ गए। क्या है कायदा नंबर 6? कि मुब्तदा अगर तस्निया मुज़क्कर है, खबर भी तस्निया मुज़क्कर ही लाई जाएगी। अब हमेशा याद रखना। नीचे आ जाओ, कायदा नंबर 7, मुब्तदा अगर जमा मुज़क्कर हो तो खबर को भी जमा मुज़क्कर लाना ज़रूरी है। बहुत आसान है, वही कायदे चल रहे हैं। वाहिद का भी समझ आ गया, तस्निया का भी समझ आ गया, वैसे ही जमा, कि मुब्तदा अगर जमा है, खबर भी जमा लाएँगे। मुब्तदा अगर जमा मुज़क्कर हो तो खबर को भी जमा मुज़क्कर लाना ज़रूरी है। मिसाल इसके ऊपर आ जाओ, मिसाल ऊपर लिखी है। क्या है?
المسلمون नाजिहून, मुस्लिमुन वाहिद था, जमा उसकी मुस्लिमून। तो जब मुस्लिमून आया, अब हमने कहना है मुसलमान कामयाब हैं, तो हम वाहिद नहीं लाएंगे। वाहिद क्या है? नाजिहुन, नाजिहुन माना होता है कामयाब, लेकिन हमने जमा लानी है। जमा क्या है? नाजिहूना, तो हम नाजिहूना लगाएंगे। अल मुस्लिमूना नाजिहूना, मुसलमान कामयाब हैं। ठीक, मुब्तदा जमा मुजक्कर था तो खबर भी जमा मुजक्कर लाई। आगे, अल अतफालु यलअबून, बच्चे खेलते हैं। बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। अब देखो यहाँ पर मुब्तदा जमा मुजक्कर है, खबर को भी जमा मुजक्कर लाया, लेकिन पिछली मिसाल और इसमें फर्क क्या है? पिछली मिसाल अल मुस्लिमून नाजिहून में खबर क्या थी? इसम थी, और यहाँ पर खबर फेल है, लेकिन फेल का भी कौन सा सीगा लाया? जमा वाला सीगा लाया, जमा मुजक्कर गायब का सीगा। अल अतफालु, बच्चे, यलअबूना, खेलते हैं। अगर मुब्तदा जमा मुजक्कर हो तो खबर को भी जमा मुजक्कर लाना जरूरी है। ओके, अब आ जाओ कायदा नंबर 8। मुब्तदा अगर वाहिद मुअन्नस हो तो खबर को भी वाहिद मुअन्नस लाना जरूरी है। सेम वही कायदे चल रहे हैं, आसान है, बस मिसालें समझते जाओ। ऊपर देखो मिसाल, अल अम्मतु ज़ाहिबतुन। अल अम्मा, अम्मा माना होता है फूफी। अम्मा किसको कहते हैं? फूफी को। अम्मा को नहीं बल्कि फूफी को कहते हैं। ज़ाहिबतुन, ज़ाहबा से ज़ाहिबतुन, जाने वाली, तो ये इसम है। ज़ाहिबतुन ये इसम है, जाने वाली इसका माना होता है। तो अल अम्मतु ज़ाहिबतुन, फूफी जाने वाली है। अब देखो वाहिद मुब्तदा जो है वो वाहिद मुअन्नस था, तो खबर भी वाहिद मुअन्नस लाना जरूरी है। अगर यहाँ पर वाहिद मुज़क्कर होता तो हम आगे वाहिद मुज़क्कर ही लाते, लेकिन यहाँ पर वाहिद मुअन्नस है, इसलिए आगे खबर भी वाहिद मुअन्नस आई। अल अम्मतु ज़ाहिबतुन, फूफी जाने वाली है। अगली मिसाल, अल क़ित्ततु हरबत, बिल्ली भाग गई। अल क़ित्ता, क़ित्ता माना होता है बिल्ली। हरबा, ये है इसका फेले माजी का सीगा। हराबा माना होता है भागना। हराबा, हराबा, हराबू, हराबत, ये है वाहिद मुअन्नस का सीगा। तो अलकित्ता, बिल्ली, हराबत, भाग गई। अब यहाँ पर जब कित्ता वाहिद मुअन्नस था तो इसकी जो खबर लाई है वो भी वाहिद मुअन्नस ही लाई है। तो मुब्तदा अगर वाहिद मुअन्नस हो तो खबर भी वाहिद मुअन्नस लाएगी, वाहिद मुअन्नस आएगी, चाहे खबर हम फेल लाएं चाहे खबर हम इसम लाएं। समझ गए? नीचे कायदा नंबर 9, मुब्तदा अगर तस्निया मुअन्नस हो तो खबर को भी तस्निया मुअन्नस लाना जरूरी है। तो मुब्तदा अगर तस्निया है तो खबर को भी तस्निया लाएंगे। कौन सा? मुअन्नस। मिसाल, अल हुजरतानी वासिअतानी, दो कमरे कुशादा हैं। वाहिद इसका क्या था? अल हुजरतुन वासिअतुन, कमरा कुशादा है, लेकिन हमने कहना है दो कमरे कुशादा हैं, तो हुजरा को तस्निया बना दो, अल हुजरतानी। अब इसकी इसकी जो खबर है वो भी वैसे ही लाएंगे तस्निया। वो क्या है? वासिया तानी, तो दो कमरे कुशादा हैं। अगली मिसाल, अल इमरातानी तुनाजिआनी, दो औरतें आपस में लड़ती हैं। इमरातुन का माना होता है औरत, इमरातानी दो औरतें। ठीक, तुनाजिउन माना लड़ने वाली, तुनाजिआनी दो लड़ने वाली। तो देखो मुब्तदा और खबर दोनों तस्निया मुअन्नस हैं। अल इमरातानी तुनाजिआनी, दोनों लड़कियां जो है कि झगड़ा करने वाली हैं। तुनाजिउ, तुनाजिआनी, तुनाजिउना, ये उससे बना है। ये इसकी जो है कि इसका वाहिद जो है वो तीन हरूफ वाला नहीं है बल्कि तीन हरूफ से ज्यादा का है। तो ये कौन सा सीगा लाया इन्होंने? तस्निया मुअन्नस गायब का। ठीक है, अल इमरातानी तुनाजिआनी, दो औरतें आपस में लड़ती हैं। तो यहाँ पर मुब्तदा जो है वो तस्निया मुअन्नस था तो खबर भी तस्निया मुअन्नस आई। ठीक, कायदा नंबर 10, मुब्तदा अगर जमा मुअन्नस हो तो खबर को भी जमा मुअन्नस लाना जरूरी है। समझ गए? मिसाल देखो, अल मुसाफिरातु जालिसातुन, मुसाफिरातुन जालिसातुन, ये था वाहिद। अब हमने जमा बनानी है कि सफर करने वाली औरतें बैठी हैं, तो सफर करने वाली औरतों की अरबी है मुसाफिरातुन। ठीक, बैठने की है जालिसुन, उसी से मुअन्नस जालिसातुन, उसी से मुअन्नस जमा जालिसातुन। तो अल मुसाफिरातु जालिसातुन, सफर करने वाली औरतें बैठी हैं। अब तिफलातु फशिल, तिफलातुन फशिलत था असल में, फशलत की बच्ची फेल हो गई, लेकिन जमा लानी है हमने। मुब्तदा जमा लाया, अब तिफलातु बच्चियां,
अब इसकी जो आगे खबर आएगी वो भी जमा मुअन्नस आएगी, तो वो क्या है? फशिल, तो बच्चियां फेल हो गई, ठीक। कायदा नंबर 11, गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के दर्जे में होती है, लिहाजा उसकी खबर वाहिद मुअन्नस ही लाना जरूरी है। थोड़ा सा अलग कायदा आ गया, वो कायदा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर हम जमा ला रहे हैं, अभी तक तो जो जमा आ रही थी ऊपर जो जमा आई है अल मुसाफिरातु, ये तो आकिल की जमा है, मुसाफिर करने वाली औरत आकिल है ना, मुसाफिर करने वाली औरतें। तो अगर आकिल की जमा है वो तो खबर भी जो है कि जमा ही आएगी। लेकिन अगर जो हम अ, जमा ला रहे हैं वो जमा है गैर आकिल की, तो गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। अब मिसाल देख, गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के दर्जे में होती है, लिहाजा उसकी खबर वाहिद मुअन्नस ही लाना जरूरी है। अब जिसको हम मुब्तदा बना रहे हैं वो जमा तो है, लेकिन वो जमा है गैर आकिल की। जैसे किताब गैर आकिल है, इसकी जमा आती है कुतुब, तो हमने मुब्तदा बनाया कुतुब को, अल कुतुब। अब इसकी जो खबर लाएंगे ना, वो खबर वाहिद मुअन्नस लाएंगे, क्योंकि गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। क्या मिसाल बनी? अल कुतुब मफ्तूहतुन, किताबें खुली हैं। इसी तरीके से अल लुअबु सगीरतुन, लुअब बोलते हैं खिलौने को, ये जमा है, ठीक। सगीरतुन छोटी, सगीरुन पढ़ चुके हो छोटा, तो मुअन्नस के लिए सगीरतुन। तो अल लुअबु खिलौने, चूंकि ये गैर आकिल की जमा है, तो इसकी जो खबर आएगी वो वाहिद मुअन्नस आएगी, तो सगीरतुन, अल लुअबु सगीरातुन नहीं, जमा नहीं बल्कि वाहिद मुअन्नस ही आएगी, क्योंकि जो मुब्तदा है वो गैर आकिल की जमा है, लिहाजा खबर वाहिद मुअन्नस ही आएगी। अल लुआबु सगीरतुन, खिलौने छोटे हैं। कितने कायदे हो गए? 11। तो ये 11 कायदे किसके हैं? मुब्तदा और खबर के, यानी जुमलाए इस्मिया के, क्योंकि जुमला इस्मिया में ही मुब्तदा और खबर का जुमला बनता है। तो ये कायदे याद रखना, बल्कि याद कर लेना। मिसालों के साथ समझाने से थोड़ी सी बात वाज़ेह हो गई, इसलिए मिसालें भी मैंने आपको बता दी। ठीक, चल हो गया नऊ का असली का। आशा सवाल है, दुरुस्तुल लुगा की तरफ। सवाल है। हाँ, तो लिखने वाला सबक लिखा है। सबसे पहले आ गई रिदा। हज़रत सवाल है एक छोटा सा। आवाज आ रही है? हेलो। मिन अइना अंता, सवाल, ठीक। अना मिनल याबानी, बहुत अच्छा, मैं जापान से हूँ। अंता मिनल फिलिपीनी, क्या आप फिलीपीन से हैं? जवाब, ला अना मिनल याबान, नहीं मैं जापान से हूँ। बहुत अच्छा। मन मिनल फिलिपीन, फिलीपीन से कौन है? तो जवाब यासिर मिनल फिलिपीन, यासिर फिलीपींस। सीन, अच्छा सीन, तो यासिर चीन से है, ठीक। मिन अइना हामिदुन, हामिद कहाँ से? हामिदुम मिन श्रीलंका, श्रीलंका से, ठीक। और अइना ज़हब अब्बास, अब्बास कहाँ गया? ज़हबा इलल मुदीर, ज़हबा इलल मुदीर। वो मुहम्मीम की तरफ गया, ठीक है। अज़हब अलीयुन इलल मुदीर, क्या अली मुदीर मुहम्मीम की तरफ गया? ला ज़हब इलल मिरहाज, वो बाथरूम की तरफ गया। वो हुए। बिना ईनान का, तुम कहाँ से हो? अना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से, ठीक। अंत मिनल फिलीपीन, क्या तुम फिलीपीन से हो? ला अना मिनल हिंद, मैं नहीं, मैं हिंदुस्तान से, ठीक। अइन ज़हब, नीचे। खराजा हामिद मिनल गुरफती व ज़हब इलल, हामिद कमरे से निकला, दूसरा निकला, ठीक। ज़ैनब मिन अइन अंत? अना मिनल यमन, ज़हब इलल, ज़हब अलीयुन इलल मदीर, ला ज़हब, हो गया।
زینب کا بھی ہو گیا، کویت بھائی کا بھی ہو گیا، ردا کا بھی ہو گیا، فریاد بھی رہ گئی. ہاں فریاد، کاپی کدھر ہے؟ سینڈ کی ہے، سینڈ کی ہے. میرے کو نہیں سنائی دے رہا، مائک لگا. جی میں نے کہا بھیجی ہے گروپ میں. گروپ میں بھیجی ہے؟ ہاں سب سے پہلے میں نے بھیجی تھی. اچھا اچھا اچھا، یہ آج کا ہے، میں سوچ رہا ہوں یہ کل کا ہے. ٹھیک ٹھیک. مینا ہی نہ آتا حضرت تو ایک کہاں سے سوال ہوگا. تھا. جی جی پوچھو پوچھو. رضا بھائی. میں نے کہا آپ نے بتایا غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے اس میں آتی ہے، تو وہ جو میں تبت یدا تھی تو اس میں تو وہ مثنیٰ تھا، تثنیہ تھا، تو وہ بھی واحد مؤنث میں ڈالا تھا، وہ بھی ہے. مطلب کہ غیر عاقل کا تثنیہ بھی اسی میں آتا ہے. غیر عاقل کا تثنیہ. ہاں کیونکہ وہ تبت یدا میں یدا نہیں تھا نا، آپ نے بتایا تھا. ہاں ہاں وہ تو اس کے لیے بھی تو واحد مؤنث تبت وہ گردان آئی نا، فعلت والی. یہاں پہ نا جو آپ پڑھ رہے ہو یہ مبتدا خبر کے جملے، وہ والا جملہ مبتدا خبر کا نہیں بن رہا ہے. تبت یدا وہ مبتدا خبر کا جملہ نہیں بن رہا ہے، بلکہ وہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ ہے فعلیہ. فعل سے شروع ہو رہا ہے نا. تبت جی فعل سے شروع ہوا ہے. یدا دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. تو فعل اور فاعل کا قاعدہ الگ ہے. یہ جو یہاں پر آپ نے قاعدے پڑھے ہیں یہ مبتدا اور خبر کے قاعدے پڑھے ہیں. تو اس حساب سے وہاں پہ جو لایا ہے انہوں نے یدا، تو تسنیہ ہے. تو تسنیہ بھی چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ عربی کے اندر عام طور پر واحد کے بعد جو بھی آتا ہے وہ جمع میں مانا جاتا ہے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو الگ سے ذکر کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر واحد کے علاوہ جو تسنیہ ہے اس کو بھی جمع میں ذکر کیا جاتا ہے. تو وہاں پر اس کو جمع میں ہی شمار کیا گیا ہے، اور ساتھ میں غیر عاقل ہے تو اس لیے اس کی جو انہوں نے وہ لائی ہے وہ واحد مؤنث کا صیغہ لایا ہے. ٹھیک ہے، چلو اس کو سمجھیں گے پھر کبھی. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى حامد ليس خرج الطالب من حضرت اس میں ایک سوال ہے نا، من ہوا من من آئینہ سنین، کہ چین سے کون ہے. تو اگر مجھے یہ جواب دینا ہو کہ کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے چین، تو وہ کیسے دیں گے؟ لا بول دو بس. کہ بھئی چین سے کوئی نہیں ہے. جی ہم لا میں سے من کوئی نہیں ہے. ہم میں سے. جی لا من الصین، منا آئے گا. منا ہوتا ہے ہم میں سے، نہ ہو گیا ہم، من ہو گیا سے. لا من الصین، وہاں پر جی نون کے اوپر تشدید لگا کر اس کے بعد الف بڑھا دیں گے. لا من الصین. چلو دیکھو پھر کتاب کی طرف. درست اللغہ. اب یہ جو جملے آپ نے پڑھے ہیں اس جیسے جملے بنانے اب آپ کو خود سے آنے چاہیے، تب فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھو آ جاؤ آج کے سبق کی طرف. من أين أنت؟ دیکھو بورڈ کی طرف. اب میں جملہ لکھتا ہوں بورڈ پہ، آپ نے جو ہے کہ اس کی عربی بنانی ہے جو میں اردو میں لکھوں گا. ٹھیک ہے، جو آپ نے مثالیں پڑھی ہیں، تمرینیں پڑھی ہیں، اسی حساب سے لکھوں گا. تو آپ نے بناتے جانا ہے. رول نمبر 1 2 3 4 یاد ہے؟ ٹھیک، اسی حساب سے چلو. نمبر 1 بناؤ اس کی عربی. آئینہ علی. علی کہاں گیا؟ اس میں فعل بھی ہے.
جملہ بناتے ہوئے جس لفظ سے سوال کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ این، کہاں؟ علی کہاں گیا؟ تو کہاں کی عربی سب سے پہلے لکھو، کیونکہ کہاں کی وجہ سے ہی یہ جملہ سوالیہ بنا۔ تو جس لفظ کی وجہ سے جملہ سوالیہ بن رہا ہے اس لفظ کو پہلے لکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ این، کہاں، ٹھیک۔ اس کے بعد لاؤ فعل، اس کے بعد فاعل۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ بناتے ہوئے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، ٹھیک۔ تو فعل کیا ہے؟ جانا، تو پہلے لاؤ ذہبا، اس کے بعد فاعل کون ہے؟ علی، تو فعل کے بعد فاعل کو لکھو، ٹھیک۔ تو جملہ فعل فاعل کا ہے، لیکن چونکہ سوالیہ ہے تو سوالیہ لفظ ہم شروع میں لکھ دیں گے، اور وہ کون سا ہے؟ آئینہ۔ جیسے انگریزی میں بھی آپ دیکھ لو، انگریزی میں بھی یہی کام ہوتا ہے کہ بس شروع میں ڈو ڈیٹ وغیرہ لگا دو تو سوالیہ جملہ بن جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جی تو بس وہی کام یہاں پہ بھی کرنا ہے کہ جملہ ایک ہے، اصل میں جملہ تھا ذہب علی، علی گیا، لیکن اسی جملے کو ہم نے سوالیہ بنانا ہے تو شروع میں ڈو لگا دیں گے۔ ڈو لگائیں گے؟ نہیں، آئینہ لگائیں گے، آئینہ، کیونکہ آئینہ کے ذریعے سے سوال کر رہے، تو آئینہ سے سوالیہ جملہ بن گیا، آئینہ ذہب علی، باقی جملہ سیم ہے۔ اس چیز پر ذرا غور۔ چلو نمبر 2، نمبر 2، زینب کہاں سے ہے؟ زینب کہاں سے ہے؟ بناؤ اس کی عربی۔ من عین زینب، من این زینب، ٹھیک۔ زینب کیونکہ یہاں پر سوال کیا ہے؟ سوال ہے کہاں سے۔ سوال کیا ہے؟ کون سا لفظ ہے سوالیہ؟ کہاں سے؟ کہاں سے، ٹھیک۔ جملہ کیا ہے؟ زینب ہے، لیکن اس کو سوالیہ کس نے بنایا؟ کہاں سے نے۔ تو کہاں سے کی عربی کیا آتی ہے؟ من اینا۔ تو سب سے پہلے کیا لکھیں گے ہم؟ من اینا، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ جو ہے زینب، تو زینب لکھ دیں گے، بس زینب ہی پیچھے بچتا ہے۔ بن گئی عربی من اینا زینب، زینب کہاں سے ہے۔ کوئی مشکل تھوڑی ہے عربی بنانا۔ تو سوالیہ جملہ ایسے بنتا ہے، سوالیہ نشان یا سوالیہ لفظ سب سے پہلے لکھیں گے، اور اگر فعل فاعل والا جملہ ہے تو پہلے فعل، مبتدا خبر والا جملہ ہے تو پہلے مبتدا پھر خبر، ٹھیک۔ چلو نمبر 3، استاذ کلاس میں ہے۔ استاذ کلاس میں ہے، نمبر 3، اس کی عربی بناؤ۔ سب سے پہلے استاذ کی عربی آئے گی، المدرس، یہ میننگ یاد کرنی ہے نا، المدرس مانا استاد۔ الفصل مانا کلاس، اور یہاں پر میں بولنا ہے ہم نے، تو فصل سے پہلے کیا لگائیں گے؟ میں کی عربی کیا آتی ہے؟ ہم؟ فی، تو بناؤ جملہ۔ تو فصلوں کیوں؟ فی جب داخل ہو کسی پر تو وہ کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے، تو اعراب کیا لگے گا؟ ہاں، فی الفصل مت بولو، فل کو سیدھے لام کے ساتھ ملا دو، فل فصلی، ٹھیک ہے۔ فل فصلی عربی کا طریقہ ہے کہ الف لام والا جو جملہ ہوتا ہے اس الف لام کو ہم پیچھے ملا دیتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے بولنے کا فل فصلی، ایک طریقہ ہے بولنے کا
فی الفصلی، لیکن ہم الف لام کو آپس میں ملا دیں گے تو بن جائے گا فی الفصلی، ٹھیک ہے؟ تو بہت اچھا، کیا عربی بن گئی؟ المدرس فی الفصل، استاد کہاں ہے؟ کلاس میں، ٹھیک؟ چلو، اس کا مطلب جملے بنانے میں تم لوگ کمزور ہو، ایسے کیسے کام چلے گا؟ پتہ آپ لوگوں کو سب کچھ ہے، آپ سمجھ میں بھی آ گیا ہے، لیکن اگر بنانے میں دقت آ رہی ہے تو اس کا مطلب پریکٹس میں کمی ہے، اپنی طریقے سے مشق نہیں کر رہے ہو۔ اب سبق آگے تب تک نہیں بڑھے گا جب تک آپ کو سارے جملے بنانے، لکھنے، سنانے نہ آ جائیں، تب تک کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ چلو، نمبر 4، خالد کمرے سے نکلا اور اور مسجد میں گیا، ٹھیک؟ بناؤ، اب سوچ سمجھ کے بنانا اس کی عربی۔ خالد کمرے سے نکلا، دیکھ لو آپ اس میں کیا فعل ہے کیا فاعل ہے۔ جملہ فعلیہ ہے تو پہلے فعل لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فاعل لکھنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جملہ کون سا ہے وہ بھی دیکھ لو، اس حساب سے بناؤ اس کی عربی جلدی۔ نمبر 4، نکلنے کی عربی کیا ہے؟ خرجا، لکھو، بولو نا، خراجہ کے بعد کیا بولو گے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے بناتے جاؤ، فعل سب سے پہلے لایا خراجہ، اس کے بعد لاؤ فاعل۔ فاعل کیا ہے یہاں پر جملے میں؟ خالد کمرے سے نکلا، ہیلو بھائی صاحب، کدھر گئے؟ اچھا، یہ کس نے بنانا ہے؟ مجھے ریاض بھائی نے بنانا ہے، آپ نے بنانا ہے؟ اچھا اچھا، تو بناؤ بناؤ جلدی۔ فائل سب سے پہلے فعل لائیں گے، فعل فاعل کے جملے میں پہلے فعل آتا ہے، تو دیکھو جی فعل کیا ہے؟ خراجہ، لکھو خرج، بولو خراجہ، بولو بولو، کوئی بات نہیں، خراجہ بولو، اس کے بعد فاعل بولو۔ راجا ہاں، خراجہ آ گیا فعل، فاعل کیا ہے؟ فاعل خالد خالد ہے، خالد، تو لکھو خالد، بولو خالد، خراجہ کے بعد خالد کیسے بولیں گے؟ خرجا خالدون خراجہ خالدن، کیونکہ یہ فعل فاعل کا جملہ ہے، تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ جی فعلیہ بھی جس طریقے سے مبتدا خبر میں خبر پر پیش آتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے کہ فعل فاعل کے جملے میں فاعل پر پیش آتا ہے۔ تو خراجہ خالدن، خالد نکلا، اب کہاں سے نکلا؟ کمرے سے، کمرے سے نکلا نا، اور سے پہلے لکھو، سے کی عربی پہلے لکھو، اس کے بعد کمرے کی عربی لکھو۔ کمرے کی عربی کیا ہے؟ غرفتن، تو بولو آپ، کمرے سے خرجا خالدن، خرج خالدن، خالدن غرفتو من الغرفت، سے کی عربی ہے نا من، من الغرفت من، جی اس کے بعد غرفہ، تو غرفہ سے پہلے من حرف جر لگ گیا، تو غرفہ کے نیچے جی زیر آئے گا، تو من الغرفتی، خرج من خالد من الغرفت الغرفتی، خالد کمرے الغرفت سے نکلا اور مسجد میں گیا، اور کی عربی کیا ہے؟ واو، خرج خالد من الغرفتی، وا آ گیا، اور تک بن گئی عربی۔ مسجد میں گیا، اب اس کی عربی بنانی ہے، باقی بن گئی۔ گیا کی عربی کیا ہے؟ ذهب، ذهب، الذهب ہاں، تو ذهب لگا دو، ذهب لگا دو، پھر ذهب وذهب، والذهب مسجد میں، مسجد میں کی عربی بناؤ۔ مسجد میں ہوں،
मी की अरबी में की अरबी है फी, मस्जिद की अ, मस्जिद, वज़हबा फिल मस्जिद। वज़हबा फिल मस्जिद, बहुत अच्छा, बन गई अरबी इसकी। नंबर 3 फरियाद, आप बनाओ इसकी अरबी। खालिद कमरे से निकला और मस्जिद में गया। नहीं, नंबर 3 किसका है? रोल नंबर 3 रिदा का है। रिदा आप हाँ, बनाओ। रिदा गायब, कहाँ? फरियाद भी आप बनाओ। खरज खालिद से कमरे से फिल गुरफती फी व फी माना में है, द मिन माना से है। मिन मिनल गुरफती व हम्म, ज़हब इलल मस्जिदी। इलल नहीं, मस्जिद में, वज़हबा मस्जिद में गया। हाँ फिल अच्छा, मस्जिद, मस्जिद और मस्जिद में गया। जुमले बनाने में बहुत कमजोर हो, आपका कैसे काम नहीं चलेगा, सबक आगे नहीं बढ़ेगा। जी, जी। चलो, जो आपने पढ़ा है उसकी दोबारा से मशक करनी पड़ेगी। चलो, मैं जुमले कुछ लिखाता हूँ, कल जुमले आपने, दे दीजिए ना। हाँ कल जी, आपने जी। उनकी अरबी बना के लानी है, ठीक है? मैं जुमले लिखता हूँ, उसके बाद ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है? आपने फिर अरबी बना के कल उसकी लानी, ठीक है? तो दुरुस्त लुगा जी। का यही सबक है आज आपका, जुमले का। चलो ठीक है, रखो आप, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, फिर मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप में।